Good morning, students. Hope you all are doing well. In today's class, we will do revision from chapter 2, Granny's Little Laptop. First, I will read the whole poem and then I will explain you. Granny has a laptop. It's sleek and shiny new. She gazes at it fondly and wonders what to do. She keeps it gently on her lap. She really thinks it's nice. She doesn't like the mouse at all. She is very scared of mice. But soon she will start a blogging and take the world by storm with precise posts on ecology and why our globe is formed. She will be in touch on email with family friends on the net and keep us all in thrall with her global tete-a-tete. She will engage in quirky forums and have a million fans asking for her recipes of fish curries and flans. She will keep the world a begging for her poetry and prose, for her masterpiece in Egyptology, for the stories that she knows. So get set, darling Granny. We are so happy you are online. You are a granny in a million. I am so glad you are mine. And the poet is Ron Mandrake. Ron Mandrake has written this poem. Ron Mandrake is a writer and a poet who is mainly famous when it comes to the domain of children's poems and writings. द पोएट मीन्स जो इसमें पोएट है वो बताते हैं इस पोएम के थ्रू कि ग्रैनी के पास एक नया लैपटॉप आता है एंड स्टार्टिंग में वो ग्रैनी क्या क्या एक्सपीरियंस करती हैं उस नए लैपटॉप के साथ, वो क्या क्या नई चीज़ें सीखती हैं, वो सारी इस पोएम में बताई गई हैं बातें. नाउ स्टूडेंट्स सी द फर्स्ट स्टैंजा गिवन हियर. ग्रैनी हैज़ अ लैपटॉप. इट्स sleek and shiny new. She gazes at it fondly and wonders what to do. In this first stanza, the poet is saying that Granny is wondering what to do with the laptop, as this is her first time to work on laptop. Earlier she had never used a laptop. It means फर्स्ट स्टैंडा में पोएट बता रहे हैं कि ग्रैनी के पास जब एक नया लैपटॉप आता है देन वो उसे देखती हैं. ग्रेस मीन्स देखना, उससे अच्छे से देखती हैं कि वो कैसा है. जब आपके पास भी कोई नई चीज़ें आती हैं देन आप बहुत अच्छे से उसको देखते हैं कि ये क्या है, इसे कैसे यूज़ करना है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं. सो स्टार्टिंग में ग्रैनी को भी कोई आइडिया नहीं था क्योंकि उन्होंने भी पहले कभी लैपटॉप यूज़ नहीं किया था. सो शी gazes at it fondly. So उस नए लैपटॉप को वो देखती हैं. Then here it is written laptop it's sleek and shiny new. So जब जो लैपटॉप था वो sleek मीन्स स्मूथ था और शाइनिंग, कोई नई चीज़ें रहती हैं तो वो आपकी ब्राइटनेस मीन्स वो बहुत चमकती हैं, और एक शाइनिंग एक स्मूथ सरफेस था उस लैपटॉप को. सो सी gazes at it fondly. सो वो उस लैपटॉप को देखती हैं अच्छे से. Now see the second stanza given here. She keeps it gently on her lap. She really thinks it's nice. She doesn't like the mouse at all. She is very scared of mice. Here in this line, Granny keeps the laptop on her lap, and although she thinks it is nice and probably the best without the mouse, because she is scared of mouse that it can be rodent. In this line, जो ग्रैनी फील्स दैट मीन्स ग्रैनी को ये फील होता है कि लैपटॉप बहुत ही अच्छा है, बट अगर इसमें ये माउस नहीं लगा होता है तो ये और भी अच्छा होता है. बिकॉज वो स्केर्ड थी मीन्स उन्हें ये डर था कि ये माउस है, ये यहाँ से मीन्स आपने देखा होगा माउस जो लगा रहता है लैपटॉप में वो बहुत एक पतले से वायर के थ्रू कनेक्ट रहता है जो आपको कनेक्ट करना पड़ता है. सो उनको ये डर था कि मे बी ये माउस वो ख़राब हो सकता है. सो शी थिंक्स दैट कि ये लैपटॉप बेस्ट रहता है अगर ये माउस ना रहता है इसके साथ. नाउ सी द थर्ड लाइन गिवन हियर, थर्ड स्टैंजा. बट सून शी विल स्टार्ट ब्लॉगिंग
and take the world by storm with precise posts on ecology and why our globe is warm. The poet begins by saying that she will soon start writing blogs on the environment and global warming, since at her age she had seen the world changing through decades she has lived. Here in this line, the poet is saying that ग्रैनी विल स्टार्ट मीन्स ग्रैनी स्टार्ट करेंगी राइटिंग, अपनी राइटिंग स्टार्ट करेंगी ऑन इन्वायरमेंट, मीन्स ग्रैनी को इन्वायरमेंट के बारे में लिखना बहुत अच्छा लगता था, सो शी विल स्टार्ट राइटिंग ऑन इन्वायरमेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग सिंस एट हर एज शी हैड सीन द वर्ल्ड चेंजिंग, मीन्स ग्रैनी की बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है, सो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया है एंड उन्होंने काफ़ी कुछ देखा है अपनी लाइफ में कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो कैसे कैसे धीरे धीरे चेंज हो रहा है। सो वो उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, उनके पास बहुत नॉलेज है, सो वो बाय राइटिंग ब्लॉग्स वो अपनी आइडियाज शेयर कर सकती हैं इंटरनेट पे। नाउ सी द फोर्थ स्टैंडर्ड गिवन, she will be in touch on email with family friends on the net and keep us all enthralled with her global tete-a-tete. So here in this line, the poet also mentions that Granny will be able to get in touch with her family and friends on the internet and enthrall everyone with her global tete-a-tete. It means in this line the poet is saying that कि बहुत जल्द ही ग्रैनी बहुत कुछ सीख जाएंगे लैपटॉप में यूज़ करना एंड वो बहुत ईजिली ईमेल के थ्रू अपने फैमिली फ्रेंड से कनेक्ट हो जाएंगे। मीन्स एक आपका एक इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं और भी जो अदर ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, आप ईजिली कनेक्ट हो सकते हैं बाय ईमेल। ईमेल आपको पता है ईमेल सेंड किया जाता है, देन उसमें आप ईमेल के थ्रू किसी अपने फ्रेंड से ईजिली कनेक्ट हो सकते हैं, देन मैसेज के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं एंड सून शी विल कीप अस ऑल इन थ्रॉल, और बहुत जल्द ही वो सबको अपने आसपास बहुत ईजिली कनेक्ट हो जाएंगी एंड जो उनके आसपास जो उनके फ्रेंड्स हैं वो बहुत ईजिली कनेक्ट हो जाएंगे उनसे एंड वो लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत एक्साइटेड हैं सब एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए एंड बात करने के लिए। Now, see the fifth line given. She will engage in quirky forum and have 1,000,000 fans asking for her recipes of fish curries and flans. The poet is sure that Granny will engage in various online forums and soon leave millions of followers asking for her recipes of fish curries and flans. So in this line, जो poet हैं वो बोल रहे हैं कि बहुत जल्द ऑनलाइन के थ्रू सी लाइक वी आर स्टडिंग ऑनलाइन, ओके, सो लाइक दिस द ग्रैनी विल ईजली engage everyone, means we teachers are engaging all of you in studying online. Similarly ग्रैनी भी ऑनलाइन अपने रेसिपीज़ को शेयर कर सकती। इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ऑनलाइन होके आप अपने डिफरेंट रेसिपीज़, अपने डिशेस जो हैं वो डिफरेंट पीपल्स को ईजिली शेयर कर सकते हैं एंड ग्रैनी के पास बहुत एक्सपीरियंस है, उनकी जो फ़िश करीज है एंड फ्लैंस वो बहुत अच्छा बनाती हैं, देन बहुत अच्छी रेसिपीज़ उनको आता है बनाने, देन वो ईज़िली जैसे वो बनाती हैं रेसिपीज़ वो ईज़िली उनके मेथड कैसे वो बनाती हैं वो ईज़िली ऑनलाइन मेथड वो ईज़िली सबको बता सकती हैं, जैसे हम करते हैं यहाँ हम टीचर्स आपको पढ़ाते हैं ऑनलाइन, देन मीन्स ऑनलाइन हम अपनी टीचिंग आपसे शेयर कर रहे हैं। सिमिलरली ग्रैनी भी अपनी जो रेसिपीज़ हैं वो डिफरेंट पीपल्स को शेयर कर सकती हैं ईज़िली इंटरनेट के थ्रू। नाउ सी द सिक्स्थ स्टैंजा गिवन, she will keep the world begging for her poetry and prose, for her masterpiece in Egyptology, for the stories that she knows. The poet further says that the world will be ever longing for her writing both in prose and poetry, including her masterpiece in Egyptology and all the stories that she knows.
सो हियर इन दीज लाइन्स द पोएट, जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं कि बहुत जल्द जो ग्रैनी है वो बहुत स्टोरीज एंड राइटिंग्स लिखेंगी अबाउट इजिप्टोलॉजी। मीन्स ग्रैनी को बहुत नॉलेज था इजिप्ट के बारे में, कि वहाँ के कल्चर्स के बारे में, वहाँ की सोसाइटी के बारे में, वहाँ के ट्रेडिशंस के बारे में। सो वो अपने राइटिंग के थ्रू, अपने ब्लॉग्स के थ्रू वो ईज़िली इंटरनेट पे अपने आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस अपने शेयर कर सकती हैं। एंड बहुत जल्द ही जो लोग हैं इंटरनेट पे वो बहुत ईज़िली उनकी इस एक्सपीरियंस को बहुत लाइक करेंगे। नाउ सी द लास्ट लाइन गिवन, लास्ट स्टैंजा। सो गेट सेट डार्लिंग ग्रैनी, we are so happy you are online. You are a granny in a million. I am so glad you are mine. Here in this line, the poet concludes the poem by expressing his joy over Granny being online, a part of a global internet family, where he can proudly tell the world that the Granny who is enthralling the world with her knowledge and charm. He expresses his joy to have such a great granny. So here in this line the poet is saying that, means poet जो है वो अपनी joy और अपनी happiness को एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्रैनी के लिए कि ग्रैनी ऑनलाइन है, देन मैं बहुत हैप्पी हूँ। एंड ग्रैनी भी एक पार्ट हो गई है अब ग्लोबल इंटरनेट का। मीन्स जब आप ग्लोबली इंटरनेट पे अपने आइडियाज़ एंड अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज ढेर सारे लोगों को शेयर करते हैं, देन वहाँ पे भी आपकी एक फैमिली बन जाती है जो आपके इस एक्सपीरियंस को, आपके नॉलेज को बहुत प्रेज करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। सो हियर द पोएट इज सेइंग दैट मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ग्रैनी ऑनलाइन है एंड वो एक पार्ट हो गई है ग्लोबल इंटरनेट की। वहाँ पे भी उनकी एक बहुत बड़ी फैमिली हो गई है। सी इंटरनेट पे आपके बहुत फ्रेंड्स बन सकते हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी हैं, देन आप बहुत अच्छे अच्छे और भी लोग होते हैं जिनसे आप अपनी आइडियाज़, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं एंड वो आपकी इस एक्सपीरियंस को बहुत लाइक करते हैं। सो वहाँ पे भी आपकी ग्लोबल इंटरनेट फैमिली बन जाती है एंड एवरीवन इज़ एंजॉइंग। मीन्स सारे वहाँ लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं ग्रैनी के नॉलेज को एंड इनके एक्सपीरियंस के। एंड हियर द पोएट इज सेइंग दैट कि उनकी जो ग्रैनी है वो शी इज़ इन अ मिलियन। मीन्स वो ऐसी ग्रैनी है जो कि 1 मिलियन में ही मीन्स व्हेन यू से ना, मीन्स आप जब किसी को प्रेज करते हैं देन आप कहते हैं यू आर इन अ मिलियन। मीन्स आप ही हो एक ऐसे अकेले एंड कोई नहीं है आपके जैसा। सो ये नाउ स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। Now class, don't forget to write your name, class with section for your attendance. Thank you class. Be safe and stay at your home.